Can you see the screen? Yes, ma'am. So we had seen this internal structure. Again, we are going to see the section, ventral section, vertical section of the heart. You can see the two auricles, right auricle and left auricle. You can see the openings for superior vena cava and inferior vena cava. It is guarded by eustachian valve. The name of the valve is eustachian. Yes, here valve is present so that blood will not enter back into the inferior vena cava. Then you can see here fossa ovalis, a depression is seen in between the two auricles. It is called as fossa ovalis. Then this is pulmonary artery going towards the left lung and towards the right lung. It is guarded by semilunar valves. Aortic valve it is. Here is the aortic valve and this is the pulmonary valve. You can see here pulmonary valve. Semilunar valves are different. Here the valve which is present at the pulmonary artery, it is called pulmonary valve, while you can see here the left atrium in which the pulmonary veins. Here also you can see the right pulmonary vein and here the left pulmonary vein. Togetherly it opens into the left auricle. Then it is guarded by the mitral valve. Auricles open into the ventricles. You have to remember all this because we are going to study how the blood flows from auricles into the respective ventricles. Here auricle and ventricle is guarded by tricuspid valve. You can see here three cusp like structure. That's why the name is given cuspid. You can see here the chordae tendineae, thread-like structures are present. These are called as chordae tendineae. These are the papillary muscles. You can see here the extensions of the heart muscle. They are called as papillary muscles. You can see three outgrowth here. Here you can see two outgrowth which are connected to the chordae tendineae and to the bicuspid wall or mitral wall. Another name for the bicuspid wall is mitral wall, which is present in between the left auricle and left ventricle. So you have to remember in the right auricle and ventricle there is tricuspid wall, and in the left auricle and left ventricle there is bicuspid wall. Then this is the septum which divides the two ventricles. It is called as interventricular septum. In between the two atrium, there is a septum called as interatrial septum. In between the two auricles and ventricles also, there is septum called as interauriculoventricular septum. Now see here, arrows are shown. How the blood flow takes place, I am going to show with the help of this diagram. Superior vena cava, or it is called as precaval, is called precaval, brings the blood from the head region, thoracic region, deoxygenated blood, which is full of carbon dioxide, and it opens into the right atrium. In the same way, post caval or inferior vena cava brings the deoxygenated blood from our inferior region or posterior region of our body, and it opens into the right auricle. At the same time, from lungs, oxygenated blood, which is brought by this pulmonary vein,
I had told you many times, only pulmonary vein is the vein which brings oxygenated blood. Only pulmonary artery is the artery which gives or which takes the deoxygenated blood towards the lung. Other all arteries carry oxygenated blood, all veins carry deoxygenated blood except this pulmonary vein and pulmonary artery. समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? हाँ मैम। क्या बताया? हाँ मैम। बोलो क्या बोला मैंने? वेन और या फिर पल्मोनरी से रिलेटेड है, वहां से ही ब्लड जाता है और आता है। क्या क्या बताओ वापस पल्मोनरी हाँ पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी से ही ब्लड आता और जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी ही ऐसी एक आर्टरी है जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैरी होता है। बाकी जो भी हमारे बॉडी में आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी। और सिर्फ पल्मोनरी वेन ही एक ऐसे वेन है कि जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बाकी के हमारे पूरे बॉडी में जो वेन्स है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अभी आ गया समझ में? हाँ मैम। तो मैंने क्या बताया कि सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दो वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगे कहाँ पे? राइट ऑरिकल में। इतना आ गया समझ में? हाँ मैम। अभी देखो उसी टाइम जो लंग्स में से हमने देखा ना, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑरिकल्स में जो सॉरी एल्यूओलाई में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में पास होता है। ये याद है आपको? हर एक एल्यूओलाई के बाजू में क्या है? ब्लड कैपिलरीज है। ये देखा हमने रेस्पिरेशन में। तो एल्यूओलाई में क्या है? ऑक्सीजन है 7 मिलियन और ये एल्यूओलाई है ईच लंग में। तो हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन एल्यूओलाई में से कहाँ जाएगा? जो उसके सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज है उसमें जाएगा। और ये ब्लड कैपिलरीज यूनाइट होके क्या बन जाएंगे? उसके पल्मोनरी वेन बनेंगे। और ये पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड रहेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। और ये 4 वेन्स है, यहाँ 2 दिख रहे, यहाँ साइड में इसके अंदर गए हो, यहाँ पे और 2 है। ऐसे 2 और ये 2 ओपन हो जाएंगे कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। दोनों ऑरिकल में ये प्रोसेस चालू रहेगी। सिर्फ इसमें कौन सा ब्लड रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड है। और ये इसके ऊपर प्रेशर आएगा ये यहाँ पे ऑरिकल्स में, तो ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ये ट्राइकस्पिड वॉल बताया मैंने, और यहाँ पे है बाइकस्पिड वॉल। अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया कि बाइकस्पिड वॉल या मिट्रियल वॉल, ये वॉल्स ओपन हो जाएंगे। और सेम टाइम ये ओपन होने के बाद यहाँ से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में और यहाँ से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ मैम। हाँ। तो फिर देखो अभी क्या होता है, इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ऑरिकल्स का एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, प्रेशर आएगा ना इसके ऊपर, तो वॉल्स ओपन हो जाएंगे। वॉल्स ओपन होते ही ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में, फिर वेंट्रिकल्स भरेगा ब्लड से, इसमें डीऑक्सीजनेटेड इसमें ऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल्स पे भी प्रेशर आ जाएगा और वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे,
यहाँ के जो वॉल्स है ये वॉल ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे रहेंगे सेमी लूनार वॉल्स। कौन से वॉल नाम क्यों दिया सेमी लूनार? क्योंकि हाफ शेप है, हाफ मून शेप है, इसलिए नाम क्या दिया सेमी लूनार वॉल्स। ये सेमी लूनार वॉल यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये ब्लड जाएगा कहाँ पे जाएगा? अभी ये पल्मोनरी आर्टरी में, ये लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट लंग में जाएगा और ये जाएगा राइट लंग में। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एल्यूओलाई का जो ऑक्सीजन है उसमें ऐड हो जाएगा, और फिर लंग्स में से ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये फिर वापस इसमें ओपन हो जाएंगे। और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास हो जाएगा आयोर्टा में, और आयोर्टा के वापस डिवीजन हो जाएंगे, छोटे छोटे आर्टरीज बनेंगे जो हमारे पूरे बॉडी को प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ मैम। हाँ मैम। ये देखो आयोटा का भी एक पार्ट इधर दिखा है, इससे ही डिवाइड हो जाएंगे आयोटा। अभी ये जो है मैंने बोला कि ये वेना कावा है, हाँ ये वेना कावा लार्ज वेसल है, इसका डायमीटर लार्जर है, तो वापस इसका डिवीजन हो जाएगा किसमें? वेन्स में। ये वेन्स है छोटे, फिर वापस ये वेन्स डिवाइड हो जाएंगे वेन्यूल्स में। आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? ये वेन्यूल्स है। फिर आयोटा जो है उसी टाइम आयोटा लार्ज वेसल है, ये आयोटा डिवाइड हो जाएगा आर्टरीज में। जैसे वेन्स है, वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, फिर ये आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगे आर्टीरियोल्स में। जैसे वेन्स डिवाइड हो जाएंगे वेन्यूल्स में, आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगे आर्टीरियोल्स में, फिर इससे और छोटे बन जाएंगे कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज जो है ये वापस रीयूनाइट हो जाएंगे इधर। ऐसे नेटवर्क रहता है हमारे बॉडी में पूरा। वेना कावा, वेन्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, फिर वापस आयोर्टा, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज। ऐसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ये पूरा सप्लाई हमारे बॉडी में ये हार्ट से यानी पंपिंग एक्शन जो होती है ये हार्ट से होती है। किसी को कुछ डाउट है क्या? नो मैम। अभी मैं ये डायग्राम के ऊपर से ही आपको समझा दूंगी पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। ये देखो ये डायग्राम है। Heart acts as main pumping organ of the circulatory system. The pumping action is brought about by rhythmic contraction and relaxation of the cardiac muscle. Contraction को बोलते हैं सिस्टोल। ये बातें याद रखना है हमको, क्योंकि आपको ये टर्म आ जाएंगे कि सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है। तो सिस्टोल यानी क्या? कॉन्ट्रैक्शन। आपको कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तो पता है, जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होते हैं तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। ये टर्म्स आपको याद रखना है। इट इज कॉल्ड एज डायस्टोल।
a single systole is followed by a diastole makes one heartbeat. जैसे कि ये ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, फिर तब उसी टाइम ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहेंगे, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तब ऑरिकल्स रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों एक साथ रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये जो प्रोसेस है सिंगल सिस्टोल, दिस इज द सिंगल सिस्टोल यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्शन और सिंगल systole of the auricle and ventricle. It is followed by diastole makes one heartbeat. और कितने टाइम लगेगा उसको? 1 मिनट, 72 टाइम पर मिनट इतना उसका बीटिंग रहेगा. दिस इज कॉल्ड हार्ट रेट. हार्ट रेट क्या रहेगा? 72 to 72 टाइम्स सिस्टोल और डायस्टोल. ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट वेंट्रिकल पंप्स अबाउट. देखो अभी ये जो वेंट्रिकल्स है, मैंने क्या बोला कि रिस्पेक्टिव वेसल में ये ब्लड जाएगा. जैसे कि अभी ये राइट वेंट्रिकल है तो राइट वेंट्रिकल जाएगा, पंप हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सेमीलुनार वॉल से ये ब्लड बाहर जाएगा. कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में. यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो जाएगी. अभी लास्ट डायग्राम में हमने देखा ये पल्मोनरी आर्टरी है, तो इससे ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाएगा लंग्स में. तो ये कितना पंपिंग हो जाएगा? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल मिला के 70 ml ऑफ ब्लड, 70 ml ब्लड इतना पंप हो जाएगा. This is called as stroke volume. It means heart pumps about 72 beats है per minute. कितना ब्लड पंप हो जाएगा? 70 ml. That is, अगर ये देखेंगे 72 into 70 ml अगर हम करेंगे तो 5041 ml इतना ब्लड क्या हो जाएगा? पंप होगा. 5 liters of blood per minute is pumped. अगर हम देखेंगे तो 5 liter ब्लड पंप हो जाएगा 1 मिनट के लिए. इट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट. इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. अभी कौन से टिश्यूज, कंडक्टिंग टिश्यूज है हार्ट में? जैसे कि SA नोड है, AV नोड है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग टिश्यू. देखो पहले SA नोड है, ये SA नोड जो है इट इज कॉल्ड एज पेसमेकर. यहाँ से हार्ट इज मायोजेनिक इन ओरिजिन. मायोजेनिक यानी क्या? जो भी इम्पल्सेस है ये अभी ब्रेन के ऊपर नहीं रहेंगे कि ब्रेन मैसेज देगा, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर ब्रेन मैसेज देगा, तब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो जाएंगे. ऐसे नहीं होता, फिर बहुत टाइम लगेगा. इसके लिए ये जो नर्वस कॉर्ड यानी इम्पल्सेस है, ये इम्पल्सेस हार्ट से ही ओरिजिनेटेड है, इसलिए उसको क्या बोला है? मायोजेनिक. दैट इज हार्ट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग अ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन independent of nervous input. It also shows autorhythmicity, यानी ब्रेन के ऊपर उसका रिदम नहीं रहेगा, इसका खुद का एक रिदम है बीटिंग का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, इसका खुद का एक ये रहेगा. ये क्यों रहेगा? क्योंकि ये मसल जो है हार्ट के वो मायोजेनिक है. A specialized cardiac musculature is called as nodal tissue. और ये जो नोडल टिश्यू है ये राइट कॉर्नर में आपको दिखाई देगा. इसको क्या बोलते हैं? SA नोड. क्यों नाम दिया है SA नोड? सिनोएट्रियल नोड.
क्योंकि ये एट्रियम वॉल के इसमें है इसलिए नाम क्या दिया, सिनोएट्रियल। इट लाइज एट द बेस ऑफ ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। हमको पता है कि सुपीरियर वेना कावा जो है ये ऊपर से आती है बॉडी के एंटीरियर सरफेस से, यानी हेड थोरैसिक रीजन से ये सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आएगा और यहाँ ये ओपन हो जाए। तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, SA नोड। Another mass of nodal tissue, it is present in atrioventricular, in between the atrium and ventricle. That's why इसको नाम क्या दिया है, it is called as atrioventricular node. आ रहा है समझ में क्यों नाम दिया atrioventricular node? क्योंकि ये ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में है इसलिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड बोला। फिर दूसरा है बंडल ऑफ हिस। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में से ये पास हो जाएगा, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। एंड परकंजी फाइबर्स, ये इसमें से जो फाइबर्स बाहर निकलते हैं इसको बोलते हैं परकंजी फाइबर्स। ये दिख रहे दोनों बंडल ऑफ हिस में से बाहर निकलने वाले फाइबर्स को बोलते हैं परकंजी फाइबर्स। तो स्टार्ट कहाँ होगा, SA नोड। SA नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर ऑफ द हार्ट। व्हाई पेसमेकर बोला है उसको, इट हैज पावर ऑफ जनरेटिंग द न्यू वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन जो है ये होने के लिए यहाँ से इंपल्सेस आते हैं इसलिए उसको क्या बोला है, पेसमेकर। इट इज अ नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ऐसे नोड फिर पास करेंगे इंपल्सेस टुवर्ड्स द AV नोड। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहता है, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस या सोडियम आयंस अंदर जाते बाहर आते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है। तो ये इंपल्सेस कहाँ जाएंगे, SA नोड से AV नोड में जाएंगे। AV नोड में से पास हो जाएंगे बंडल ऑफ हिस में। बंडल ऑफ हिस में से ये पास हो जाएंगे परकंजी फाइबर्स में, और परकंजी फाइबर्स में से ये राइट वेंट्रिकल्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल में इंपल्सेस सेंड हो जाएंगे और फिर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। बहुत इजी, एकदम याद रखने के लिए बहुत आसान है। ऐसे नोड क्यों बोला, क्योंकि ये ऑरिकल्स में है और कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा के ओपनिंग के बाजू। फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है। स्टार्ट यहाँ से हो गए, इंपल्सेस स्प्रेड हो जाएंगे ऑरिकल्स में, दोनों ऑरिकल में इंपल्स पास होंगे, फिर AV नोड में पास हो जाएंगे। AV नोड में से इंपल्सेस जाएंगे बंडल ऑफ हिस में, और बंडल ऑफ हिस में से परकंजी फाइबर्स, और परकंजी फाइबर्स में से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ये पास हो जाएंगे। दोनों साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। अभी ये वर्किंग मैकेनिज्म कैसे देखना है कि सिस्टोल और डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये कैसे होता है, अल्टरनेटली हो जाता है। एक बार सिस्टोल होता है फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, so it alternately contracts and relax. It is called as single cardiac cycle and it is completed in 0.8 second. 0.8 second में ये cycle complete होती है. It is called as cardiac cycle. Atrial systole देखते हैं पहले। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, बहुत बार बताया मैंने कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए इसको क्या बोला है, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो ये सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा का भी इधर ओपनिंग होता है, यूस्टैशियन वॉल इसको गार्ड करते हैं। तो ये दोनों एक साथ यहाँ पे बॉडी के इंफीरियर सरफेस से
और एंटीरियर सरफेस से ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से, किसमें, राइट एट्रियम। और ये जो पल्मोनरी वेन्स है, ये पल्मोनरी वेन्स जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेके आएंगे और ये ओपन हो जाएंगे लेफ्ट एट्रियम में। समझ में आ रहा है मैं जो बता रही हूँ गर्ल्स? यस मैम। हाँ मैम। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने सुना है क्या कभी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके हार्ट में होल है, ऐसे सुना है? हाँ मैम। यस मैम। तो ये ब्लू बेबी भी बोलते हैं। तो जैसे ये बेबी फीटस 7 मंथ्स तक जाता है तो यहाँ पे इंटर ऑरिकुलर सेप्टा तैयार होता है, लेकिन कोई कोई बेबीज में ये सेप्टा पूरा कंप्लीट नहीं तैयार होता है, इसलिए यहाँ पे एक होल रहता है। ये होल रहने की वजह से क्या होता है, ये दोनों ब्लड मिक्स हो जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं। इसलिए फिर डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते, सर्जरी के लिए सजेस्ट करते। और फिर अगर इमरजेंसी रहेगी, बहुत तकलीफ होती है, तो ये सर्जरी करके ये सेप्टा यहाँ पे डाल देते। नहीं तो अगर तकलीफ कम है, बहुत कम स्पेस है, तो जैसे वो बेबी डेवलप हो जाएगा, ये हार्ट के मसल्स तैयार हो जाते हैं, तो ये अपने आप दोनों चेम्बर्स अलग हो जाते एक दूसरे से। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस क्या मैम। बताया मैंने? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड is brought by superior vena cava and inferior vena cava opens in the right atrium. Simultaneously pulmonary veins bring oxygenated blood. It is called, अभी ये यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा तो ये एट्रियल सिस्टोल रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी दोनों एट्रियम, इट इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। क्यों? यहाँ पे प्रेशर और ऐसे नोड काम कर रहे हैं ना, ऐसे नोड ये इम्पल्स सेंड करेंगे, और इम्पल्स सेंड होते ही दोनों ऑरिकल्स में जैसे ही इम्पल्स सेंड हो जाएंगे, ये एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, यानी एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये जो वॉल्स है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल यहाँ पे बताया मैंने, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल बताया। राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड है और लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल में बाइकस्पिड है। ये वॉल्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे और ब्लड एंटर होगा, deoxygenated blood will enter into the right ventricle and oxygenated blood will enter into the left ventricle. In normal condition, atrial systole is for 0.1 second. Atrial systole कितनी देर तक रहेगा? 0.1 second. And atrial diastole for डायस्टोल यानी रिलैक्स स्टेट में कितनी देर तक रहेगा? 0.7 सेकेंड। अभी देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे ये ब्लड यहाँ पे आएगा, ये जो ऐसे नोड है, पहले यहाँ पे मैंने बोला ऐसे नोड इम्पल्स सेंड करेंगे एवी नोड को, एवी नोड में से बंडल ऑफ हीस में जाएगा, बंडल ऑफ हीस में से परकंजी फाइबर से ये जो हमने देखे पैपिलरी मसल्स, वहां पे मैसेजेस जाएंगे और ये वेंट्रिकल्स का सिस्टोल होगा। क्योंकि इसमें ब्लड भर गया है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अभी ये ब्लड जाएगा रिस्पेक्टिव वेसल्स में। अभी राइट वेंट्रिकल का वेसल कौन सा रहेगा? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स उसको गार्ड करेंगे। याद रखने वॉल्स के नाम, बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए वॉल्स रहते, यानी इसमें से ब्लड वापस वेंट्रिकल में नहीं आने चाहिए, इसलिए। तो ये पल्मोनरी
आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी ओनली वन आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो इसमें ब्लड जाएगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी सेमिलुनर वॉल्स है, ये ओपनिंग में है कौन से, आयोर्टा के, लार्ज वेसल जो है हमने देखा आयोर्टा। तो ये वेंट्रिकल्स में से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोर्टा में, और यहाँ राइट वेंट्रिकल में से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे कौन सा साउंड क्रिएट हो जाएगा, लब साउंड इज हर्ड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल द कस्पिड वॉल क्लोज, यानी ये जो कस्पिड वॉल है यहाँ ये बंद हो जाएंगे। कब, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं तो ब्लड वापस जाएगा ना इधर। ये प्रिवेंट करना है हमको, हार्ट को प्रिवेंट करना है, तब ये वॉल्स जो है ये बंद हो जाएंगे। क्लोज बोथ द वॉल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर्स प्रिवेंटिंग द फ्लो इनटू द एट्रिया। तब कौन सा साउंड हार्ट का सुनाई देगा, लब साउंड। लब और डब ऐसे दो साउंड्स रहते। तो लब साउंड कब सुनाई देगा, कि जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ये वॉल्स बंद हो जाएंगे। क्यों वॉल्स बंद होनी चाहिए, to prevent the backflow. किसमें प्रिवेंट करना है, यहाँ पे इनटू द रिस्पेक्टिव Artery. एट्रियम। Then in normal condition ventricular systole last for 0.3 second. Ventricular systole का टाइमिंग क्या है, 0.3 सेकेंड से, एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल फॉर 0.5 सेकेंड। अभी कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद वो रिलैक्स स्टेज में रहेंगे और उसका ड्यूरेशन कितना है, 0.5 सेकेंड। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल सेमिलुनर वॉल्स आर क्लोज्ड। ये जो सेमिलुनर वॉल्स है ये क्लोज रहेंगे। कब, डायस्टोल में रहेगा, रिलैक्स स्टेज में रहेंगे तब। डायस्टोल यानी क्या बोला मैंने, रिलैक्सेशन, और सिस्टोल यानी क्या, कॉन्ट्रैक्शन। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम कौन से वॉल्व क्लोज रहेंगे, सेमिलुनर वॉल्स। सेमिलुनर वॉल्स कहाँ पे बताया, एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एट द ओपनिंग ऑफ आयोर्टा। ये आयोर्टा का ओपनिंग है, याद रहेगा। फॉर अबाउट 0.4 सेकेंड बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन डायस्टोल। कितने सेकेंड के लिए, फॉर 0.4 सेकेंड दोनों भी रिलैक्स स्टेज में रहेंगे। कौन दोनों, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। ये ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों एक साथ रिलैक्स स्टेट में रहेंगे। इट इज कॉल्ड एज atrioventricular diastole and it lasts for 0.4 सेकेंड। तो ये पूरी साइकिल जो है ये 0.8 सेकेंड के लिए चलती। ये हम देखने वाले पेज नंबर 172 पे कार्डियक साइकिल बताया। The duration of one cardiac cycle is for 0.8 सेकेंड। ज्वाइंट डायस्टोल किसको बोलते हैं, जब ये दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं। कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके, तो दोनों एक साथ रिलैक्स रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल और इट इज कंप्लीट डायस्टोल। और एक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितना रहेगा, 0.8 सेकेंड।
ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दी है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। अभी जो हमने देखा ये एएस यानी क्या है, एट्रिकुलर सिस्टोल, यानी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेंगे। इट इज फॉर 0.1 सेकेंड, ये भी देखा हमने। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज में रहेंगे फॉर 0.3 सेकेंड्स, 1, 2 और 3 सेकेंड, फॉर 0.3 सेकेंड्स। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल यानी क्या, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स दोनों भी रिलैक्स स्टेज में रहेंगे। इट इज फॉर 0.4 सेकेंड, 1, 2, 3 और ये 4, ये 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल रहेगा, यानी एट्रियम भी रिलैक्स्ड रहेंगे और वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स रहेंगे। फिर ऑरिकुलर सिस्टोल, ये भी 0.1 सेकेंड के लिए दिखा है। तो अगर ये पूरा हम काउंट करेंगे, एक कार्डियक साइकिल जो होती है, एक कार्डियक साइकिल ये 0.8 सेकेंड्स के लिए होती है। It is for 0.8 seconds. पेज नंबर 172 जो है आपके टेक्स्ट बुक में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर एट्रियल सिस्टोल, उसमें ये सब बताएं। कार्डियक आउटपुट जो है, कार्डियक आउटपुट SV into HR, that is 70 into